सो हमने अभी तक स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, निमोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया और कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस सीरस सब कंप्लीट कर लिए। अब नाउ इट्स टाइम्स टू इट विल बी द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, दैट विल बी द लास्ट। क्लोस्ट्रीडियम के अंदर 4 बैक्टीरिया होते हैं, 4 बैक्टीरिया के क्लोस्ट्रीडियम स्पेसिस के अंदर 4 बैक्टीरिया है, दैट विल द क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम। तो उसमें से जो लास्ट है इट इज़ नॉट नीड टू स्टडी, इट इज़ नॉट मच important. All these three are the most important for the university examinations as well as the during the practice. So first, that is Clostridium tetani and Clostridium perfringens and Clostridium botulinums. So let's learn the first, that is Clostridium tetani. Clostridium tetani Clostridium tetani, it is a gram-positive bacteria, spore-forming bacteria. It is obligate anaerobes. You have to remember obligate anaerobics, that is a Clostridium tetanium bacteria, which is found in the soils and animal feces के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है it causes the disease. Which disease is caused by the Clostridium tetani? That is a tetanus disease. Tetanus is a lockjaw disease, which is the responsible Clostridium tetani is responsible for the tetanus disease, and tetanus disease means what? That is a lockjaw disease. Second point है हमारे पास morphology. It is the cylinder in the shapes. Clostridium tetani कैसे होते हैं? cylinder in the shapes होते हैं, उसका शेप जो होता है वो सिलेंडर जैसा शेप होता है उनका। सेकेंड पॉइंट, इट्स द टर्मिनल स्पोर्स गिविंग राइज टू द drumstick appearance. Under the microscope it show the drumstick appearance, which is the asked as a MCQ. Clostridium tetani bacteria show the which type of appearance, that is a drumstick appearance show by the Clostridium tetani bacteria. Then non-capsulated bacteria and non-motile bacteria, that is a Clostridium tetani is a non-capsulated and non-motile bacteria. This will be the diagram draw in the examinations. थर्ड पॉइंट हमारे पास है, दैट इज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी इज एन ऑब्लिगेट अनएरोबिक बैक्टीरिया. ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ इज 37 डिग्री सेल्सियस. In each bacteria you have write that the optimum temperature and optimum pH, that will be 37 degree Celsius, और average ले सकते हैं around the 37 degree Celsius, and pH that is a 7.4 pH. That is, and fourth one, well grow in a cooked meat broth, that is a CMB broth. cooked meat broth well grow होती है उसके ऊपर. देन फोर्थ हमारे पास है, दैट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस. बायोकेमिकल रिएक्शन 3 टाइप के टेस्ट है, दैट इज कैटालिस्ट टेस्ट, इट इज़ अ नेगेटिव टेस्ट शो करता है. ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव होता है. एंड फर्मेंटेशन डू नॉट फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी फर्मेंट नहीं करता और माल्टोज भी फर्मेंट नहीं करता. इट इज द शो it is a simply biochemical reaction, negative. All 3 tests are the negative, that is catalyst negative test है, oxidase test negative, and fermentation test it does not ferment anything, not either glucose or either glucose or other maltose. Then fifth point हमारे पास है virulence factor. Virulence factors means what? The bacteria produce the structure which helps in the host, which helps in the host defense mechanisms and growth and multiplications of the bacteria into the host. The first that will be the virulence factor is the most important, that is a titanospasmin. After the preventions of the phagocytosis, the Clostridium tetanium bacteria secrete the titanospasmin. Titanospasmin क्या करता है? जो करता है, इट इज़ द फंक्शन दैट इज़ अ ब्लॉक द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. जो इनहिबिटरी हमारे बॉडी के अंदर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गाबा एंड ग्लाइसिन्स, विच इज़ द उनको क्या करता है, वो ब्लॉक करता है. और ब्लॉक करने से क्या होगा? इनहिबिशंस नहीं होगा. इनहिबिशन नहीं होगा तो क्या होगा? इट विल द कॉजेज द स्पाज्मोटिक पैरालिसिस, जिसकी वजह से स्पाज्मोटिक पैरालिसिस होता है. और हमने इसी को क्या बोला था? टिटैनस डिसीज कॉज करता है. सेकेंड दैट इज अ टिटैनोलाइसिन्स. टिटैनोलाइसिन्स रिलीज करता है. टिटैनोलाइसिन्स इट इज़ अ हीमोलाइसिन्स. नो मेजर रोल इन द डिसीज, और जनरली इट इज़ नो मेजर रोल. सिर्फ ये क्या करता है? हीमोलाइसिन्स करता है. हीमोलाइसिन्स मीन ब्रेकडाउन्स ऑफ द ब्लड, ब्रेकडाउन्स ऑफ द RBC.
spore. Third, that is a resistance to the heats and disinfectants survive in the soils for the years. जो इनके स्पोर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं हीट को और सर्वाइवल फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स इनटू द सॉइल्स विच इज़ द रिजर्वर्स ऑफ द दिस बैक्टीरिया. उसके बाद है पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस दैट इज द स्पोर एंटर थ्रू द कंटेमिनेटेड वुंड्स और अम्बिलिकल स्टेम्स दैट इज अ नियोनेटल टिटेनस. अगर एडल्ट होगा तो उसके कंटेमिनेटेड वुंड से स्पोर एंटर करेगा और जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं या फिटस होते हैं उसके अंदर जो अम्बिलिकल स्टम्प होता है अगर that will be the not properly cut, it will be the causes the neonatal tetanus diseases. उसके बाद हम देखेंगे that is the second. फर्स्ट हम देखा that is the spore enter through the umbilical contaminated the in anaerobic condition spore germinate to give the vegetative cells. अनएरोबिक कंडीशन के अंदर क्या होगा वो स्पोर जर्मिनेट होंगे एंड इनटू द वेजिटेटिव सेल्स. बैक्टीरिया रिलीज करेगा टिटेनोस्पाज्मिन आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी टू बाइंड्स टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ वो बाइंड करेगा. वहाँ पे बाइंड करने से क्या वो ट्रैवल्स टू द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लेके वो क्या करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र होगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ब्लॉक इनहिबिटरी न्यूरोटॉक्सिन्स. ब्लॉक इनहिबिटरी न्यूरोटॉक्सिन्स विच न्यूरोटॉक्सिन जनरली फॉर एग्जांपल दैट इज गाबा एंड ग्लाइसिन्स. वो क्या करेगा कॉजेस सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज अ स्पाज्मोडिक पैरालिसिस. इन पैथोजेनेसिस यू डायरेक्टली राइट दैट इज बैक्टीरिया रिलीज होगा. बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी या होस्ट bacteria after entering into the that is releases the one of the toxin that is a titanospasmin toxins. titanospasmin toxin रिलीज करने के बाद क्या होगा टिटेनोस्पाज्मिन बाइंड करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ वो ट्रैवल्स करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लॉक इनहिबिटरी न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं लाइक गाबा एंड ग्लाइसिन उनको क्या करेगा इनहिबिट करेगा उनका फंक्शंस और इनहिबिट उनको ट्रांसफ़र नहीं होने देगा. उसकी वजह से क्या होगा डिसीज कॉज होगा दैट इज अ सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्मोटिक पैरालिसिस डिसीज कॉज. देन क्लिनिकल फीचर फर्स्ट दैट इज अ ट्राइमस लॉकजॉ राइसस सार्डोनिकस दैट इज अ फेशियल स्पाजम्स होगा उसके अंदर. नेक स्टिफनेस देखेंगे हमें मसल स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी इन द swallowing. ऑल द डिसीज आर रिलेटेड टू द ब्लॉक इम्यूनिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स. देन उसके बाद हम देखेंगे उसके लैबोरेटरी डायग्नोसिस. लैबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर दैट इज स्पेसिम्स. फर्स्ट वुंड सैब होगा. वुंड सैब हम कलेक्ट करेंगे. देन उसके बाद हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर करेंगे. ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव रॉड्स विद द टर्मिनल स्पोर अंडर द माइक्रोस्कोप्स. व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ दैट बैक्टीरिया इट विल बी द टर्मिनल स्पोर्स. Culture anaerobic condition but toxin detection is a difficult. Clinical diagnosis is more important in it. टॉक्सिन डिटेक्शन जो होता है उसका डिफ़िकल्ट होता है. जनरली हम इसका टॉक्सिन डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं थ्रू टेस्ट.